रहा हूँ, we'll have 2 extra classes in this week. One is on Tuesday, another one is on Thursday, another one is on Thursday. Good morning, Elma. Zikra, good morning. Semiconductors. So before we make a start with semiconductor, we should understand the concept of energy level in an atom. अब देखिए, we talk about for an isolated atoms. All the energy levels are same. All the energy levels are same. So initially you should understand all the energy levels are same. Suppose take the example ले लीजिए कि दो एटम है, सोडियम एटम मान लीजिए, both will have same energy level. Both will have same energy level. इस बात को आपको याद रखना है. Both will have same energy level. But what happens when atoms comes closer to each other? This is very important. ये बहुत important बात हम करने जा रहे हैं. उस वक्त क्या होगा जब एटम्स, पहली चीज आपको समझ में आनी चाहिए, isolated atoms do not exist. Isolated atom do not exist. Exist ही नहीं करते. तो जब हम एक solid की बात करते हैं, whenever we talk about a solid, there are millions of atoms comes together. Millions of atoms comes together and form a solid. इसी में हम आगे बढ़ेंगे. इसी में हम आगे काफी चीजें करेंगे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ. With two sodium atom, for example, if two sodium atoms comes closer to each other, then what will happen? They do not show same energy level. They show two energy levels. Two energy levels. और आप ये कह सकते हैं कि उनकी वैलेंस एनर्जी सेम होगी? नहीं, सेम होगी. वो तब सेम होगी जब atoms isolated हो. When atoms are isolated, then their valence energy is same. But when they are not isolated, their valence energy should not be same. They show the different valence energy. So I'm just taking the example of two sodium atoms. तो दो तो होते नहीं हैं. In a small piece of sodium, there are millions of atoms. So what happens when millions of atoms comes together to form a solid? Do they show same energy valence energy levels? No, they do not show the same energy levels. Okay, तो इसी discussion को आगे बढ़ाते हैं. Let's move forward. If 3 atoms of sodium comes nearer to each other, then their valence energy level is not same. They show
three different valence energy. One, two, three. When millions of atoms comes closer to each other, closer to each other to form a solid, to form a solid. Then their valence energies are confined in this box. This is called valence energy band. Valence energy band. So it is not practically possible कि आप millions of energy level को show करेंगे. हाँ, आप ये कह सकते हैं कि इन सभी एटम्स की जो एनर्जी है, इन सभी एटम्स की जो वैलेंस एनर्जी है वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में होगी. This much you can say. So the concept of valence band is very simple. Valence band shows the valence energies of valence electrons. Valence energy of valence electrons. Initially, this information is more than sufficient to understand. Or we'll have two extra classes. One is on Tuesday, another is on Thursday. Because हमारा बैच 2 दिन लेट शुरू हुआ था और एक तीसरे दिन क्या हुआ, कुछ पावर प्रॉब्लम्स हो गई थी, वी हैव टू कवर. एंड सेकेंडली, जब आपका संडे को टेस्ट होगा तो आई जस्ट वांट दैट वी शुड गो फॉर अ गुड लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस, good level of objective practice so that you should be able to perform good in your test. This is my desire. When millions of atoms come closer to each other to form a solid, then they show the millions of energy, valence energy. So it is practically not possible to draw the millions lines. So we say that that all the valence energy of electrons are lying between a certain lower limit and a certain upper limit. So this certain lower limit and upper limit से हमारा बनता है valence band. Valence band is nothing. Valence band shows the valence energy of valence electron. तो टॉपिक शुरू करते हैं. सबसे पहले 4-bit एनर्जी गैप और बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे. तो गिव द फर्स्ट हेडिंग valence band. Valence band. The outermost electrons, sorry, of an atom are called valence electrons. The energy band occupied by the valence electrons is called valence band. Is called valence band. That is the first point that you should note it down. Second point, conduction band. Conduction band. 12th में भी आपने पढ़ा होगा.
when valence electron is given the energy needed to break a covalent bond, needed to break a covalent bond. Then what happens? Then covalent bond is broken. Then covalent bond is broken. Sorry. An electron jumps. An electron jumps to the next energy band. Next energy band. Next energy band. It is called conduction band. It is called conduction band. When electron reaches the conduction band, it becomes free. It becomes free to move inside the crystal. It is called free or conduction electron. It is called free or conduction electron. It is called free or conduction electron. So please note it down. And please tell me if you have noted down. Or it is called free or conduction electron. But it is only possible when the breaking of covalent bond takes place. जब covalent bond break होगा, जब covalent bond break होगा तभी ये possible होगा. Okay, Vikra, thank you. One more question I would like to ask you. क्या आप लोगों को ये सारी जो क्लासेस रिकॉर्ड होती हैं, जो क्लासेस आपकी लग रही है, क्या आपको इसकी रिकॉर्डिंग देखना है? You want to see that recording? तो
तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इसको अनलिस्टेड यूट्यूब में अपलोड करके आप लोगों के चैट बॉक्स पर इसका लिंक भेज देता हूँ सारी क्लासेस का, तो आप अपने मोबाइल से कभी भी इन क्लासेस को देख पाएंगे। तो मुझे लगता है दिस विल बी गुड इनफ। तो आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। इनिशियल कंसेप्ट है, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। एंड एक और चीज आपको याद रखनी चाहिए कि जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होगा, जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होगा वो बॉन्ड फॉर्म करेगा। Okay, Mariam, you sent me the doubt. I do agree with this. Actually, all of you should be informed by me. I had an eye surgery some last week. So doctor has advised me not to take any. तो मैंने, और दूसरा सेकेंडली आपने हाफ लाइफ पे क्वेश्चन पूछे थे, अभी हाफ लाइफ कवर नहीं हुआ है। आप लोग क्वेश्चन पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर, डेफिनेटली आंसर, बिकॉज आई हैड बीन एडवाइज द रेस्ट फॉर कंप्लीट 10 days। तो बस मैं आप लोगों की क्लास लेता हूँ, बाकी मेरे बैचेस हैं वो भी नहीं ले रहा हूँ मैं आजकल। आप डाउट पूछिए, आई एम हियर टू आंसर योर डाउट्स। और आपको मैं बता दूं, जो हमने पढ़ा है न्यूक्लियर, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी हमने पढ़ा है। हमने उसमें न्यूक्लियर एनर्जी, ये तो आपको शाहीन एकेडमी से शेड्यूल आएगा तभी पता चलेगा कि कब होगा रेडियो एक्टिविटी। तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया, फ्री और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहेंगे, फ्री और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। यहाँ वर्ड फ्री क्यों दिया हुआ? क्या वर्ड फ्री देने के दो मीनिंग है। पहला कि वो बॉन्ड को ब्रेक कर चुका है, कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके फ्री हो गया है। और दूसरा मीनिंग ये है कि इट इज फ्री टू मूव, बिकॉज ये कोई भी बॉन्ड नहीं बना रहा है, सिंस इट इज नॉट फॉर्मिंग अ बॉन्ड, सो इट इज फ्री टू मूव। तो कंडक्शन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन के लिए यही इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट, forbidden energy gap. The energy gap the energy gap between valence band valence band and conduction band is called forbidden energy gap. Is called forbidden energy gap. Forbidden energy gap. Let me show you. This is our valence band, and this is our, say, conduction band. This gap is called forbidden energy gap. और हमेशा याद रखना चाहिए फॉर सिलिकॉन, वेट अ मिनट, ये गैप आपको क्या कहलाएगा, फोरबिडन एनर्जी गैप। फॉर सिलिकॉन इट इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फॉर जर्मेनियम it is 0.7 electron volt, and silicon
and germanium, they are called semiconductors. They are called semiconductors. For metals, there is no forbidden एनर्जी गैप. मेटल्स के लिए गैप नहीं होगा. फॉर इंसुलेटर्स, forbidden energy gap. Forbidden energy gap is large. Energy gap is large. काफी बड़ा होगा. So conductivity of material is decided by the forbidden energy gap. If gap is small, let us understand. अगर गैप छोटा होगा, गैप स्मॉल होगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन requires less amount of energy to shift into conduction band. जब तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में शिफ्ट नहीं करेगा, जब तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में शिफ्ट नहीं करेगा, तो कंडक्टिविटी नहीं इंक्रीज होगी. किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी इस फैक्टर पर डिपेंड करती है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड. फिर से सुनिए. The conductivity of any material depends upon a very simple factor. What number of electrons are present in the conduction band? What number of electrons are present in conduction band? Conduction band में जितने ज़्यादा electrons होंगे, उतनी ही ज़्यादा material की conductivity को consider, उतना ही ज़्यादा material की conductivity को consider किया जाएगा. अगर conduction band में कम electron होंगे, अगर conduction band में कम इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम कहेंगे मटेरियल की कंडक्टिविटी लो है, पुअर है. अब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होने के लिए जरूरी है कि कहाँ से आएंगे. ये भी तो एक क्वेश्चन है कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे. डेफिनेटली वैलेंस बैंड से आएंगे. और वैलेंस बैंड से जब इलेक्ट्रॉन्स को हम कंडक्शन बैंड में शिफ्ट करते हैं, तो हमें कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा. कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तभी इलेक्ट्रॉन then only electron gets liberated to the conduction band. और definitely आप अच्छे से जानते हैं, fundamental chemistry है, to break a bond we require some energy. So here that energy is shown by a gap that is called forbidden energy gap. और जितना ज़्यादा बड़ा होता जाएगा गैप, तो कंडक्टिविटी की प्रोबेबिलिटी, कंडक्टिविटी के जो चांसेस हैं वो क्या होते जाएंगे, रिड्यूस होते जाएंगे. जितना गैप स्मॉल होगा, तो मटेरियल की कंडक्टिविटी के प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हायर साइड होगी. जब गैप छोटा होता है, when forbidden energy gap is small, then by providing us very small amount of energy, by providing the very small amount of energy to the valence electron, we can shift the valence electron to the conduction band. तब हम वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक छोटा अमाउंट ऑफ एनर्जी देके कंडक्शन बैंड में शिफ्ट करते हैं. तो गैप, जब हम सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन की स्टडी करते हैं, when we study the classification of solids, the generally solids are classified in how many categories? 3 categories. solids को हम 3 categories में classify करते हैं. conductors, that means metals. In metals there is no forbidden energy gap, let me tell you. Then insulators. For insulators, the energy gap is very large. For insulators, the energy gap is very large. Then comes semiconductor. The best definition of semiconductor is very simple. The materials, semiconductors are materials जिनकी conductivity metal से कम होती है, metal से कम होती है, पर insulator से ज़्यादा होती है. insulator को भी हम conducting material बना सकते हैं, पर उसके लिए फिर हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा. बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा. तो एनर्जी गैप बहुत इंपॉर्टेंट है. एनर्जी गैप डिसाइड करता है, एनर्जी गैप डिसाइड करता है कि
एनर्जी गैप डिसाइड करता है कि मटेरियल की कंडक्टिविटी कितनी होगी। अगर मटेरियल की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है तो एनर्जी गैप क्या होता है, छोटा होता है, एनर्जी गैप छोटा होता है। और अगर मटेरियल की कंडक्टिविटी कम होती है, अगर मटेरियल की कंडक्टिविटी कम होती है तो एनर्जी गैप क्या होता है, बड़ा होता है। तो फोरबिडन एनर्जी गैप से हम इस चीज को डिसाइड कर पाते हैं, इस चीज को डिसाइड कर पाते हैं। और फोरबिडन एनर्जी गैप, इट इज द गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। और कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट बट नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट इन वैलेंस बैंड। इन वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री। क्यों फ्री नहीं है? क्योंकि वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट लेते हैं, वो बॉन्ड बनाते हैं, दे मेक कोवैलेंट बॉन्ड्स, इसलिए वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो बिल्कुल भी नहीं कहलाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स तो बिल्कुल भी नहीं कहलाएंगे। और सिलिकॉन के लिए एनर्जी गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और एक और चीज आप नोट कर लें, अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लें, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, आगे चल के हम इसको डिस्कस भी करेंगे, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड द फोरबिडन एनर्जी गैप डिक्रीजेस। अब मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ज्यादा डिक्रीज होगा कि कम डिक्रीज होगा, बट वी हैव अ वन स्टैंडर्ड स्टेटमेंट, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, जब टेम्परेचर को हम बढ़ा देते हैं, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड द फोरबिडन एनर्जी गैप डिक्रीजेस। और फोरबिडन एनर्जी गैप का डिक्रीज होना, फोरबिडन एनर्जी गैप का डिक्रीज होना बताता है कि कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो गई। आई एम होपफुल कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब देखिए कई बार एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, एनर्जी। अब हम वैलेंस बैंड में हमारे पास सपोज करिए एक इलेक्ट्रॉन है, हम उसे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें उसे इतनी एनर्जी, सफिशिएंट एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे कि वो बॉन्ड ब्रेक करे, जिससे कि वो बॉन्ड ब्रेक करे। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस एनर्जी को कैसे देंगे। देखिए दो मेथड्स, तीन मेथड्स। पहला मेथड है बाय अप्लाइंग अ इलेक्ट्रिक फील्ड, हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। दूसरा मेथड है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल का टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे। और तीसरा मेथड जो बहुत कॉमन मेथड है, सम अमाउंट ऑफ लाइट विल फॉल ऑन द मैटर। और आप जानते हो लाइट रेस में क्या होते हैं, लाइट रेस में क्या होते हैं, फोटोन होते हैं, एंड फोटोन हैव गॉट एनर्जी। तो जब लाइट किसी मटेरियल पे फॉल होती है, व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट ऑन ए मटेरियल, तो फोटॉन्स अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं। तो एनर्जी और वेवलेंथ, अच्छा अब दूसरी चीज, लाइट हैज गॉट वेवलेंथ, तो वेवलेंथ और एनर्जी का कनेक्शन आपको मालूम होना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 12,400 divided by lambda wavelength in angstrom। अब जैसे फॉर सिलिकॉन, forbidden energy gap, forbidden energy gap, forbidden energy gap is 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सिलिकॉन के, इसका मतलब बहुत क्लियर है, सिलिकॉन में एक, सपोज करिए कि सिलिकॉन में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और हमें उसे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, लाइट के थ्रू कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए हमें कितनी वेवलेंथ की लाइट देना पड़ेगी, निकाल सकते हैं, 12,400 डिवाइडेड बाय ई। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 1.1 एंड प्लीज डिवाइड इट, देन यू विल क्विकली अंडरस्टैंड कि कैसे आप इसको डिवाइड कर पाएंगे। डिवाइड करिए, थोड़ा कैलकुलेशन भी करिए, अप्रोक्सीमेटली 11,300 एंगस्ट्रॉम का लाइट चाहिए हमें।
तो हमेशा याद रखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज वेल कनेक्टेड विद वेवलेंथ। तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे हमने एग्जांपल लिया सिलिकॉन, तो हमें कितनी एनर्जी चाहिए, 1 पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये पहला मेथड तो है कि हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, दूसरा मेथड है कि हम मटेरियल का टेम्परेचर क्या करेंगे, ठीक है, इंक्रीज करेंगे, और तीसरा मेथड है विद द हेल्प ऑफ लाइट वेव्स, विद द हेल्प ऑफ लाइट वेव्स, विद द हेल्प ऑफ लाइट वेव्स, विद द हेल्प ऑफ लाइट वेव्स। अब देखिए आगे हम अगली कंसेप्ट लेते हैं, होल। व्हेन इलेक्ट्रॉन, अच्छे से समझिएगा इसको, व्हेन इलेक्ट्रॉन jumps from valence band, when electron jumps from valence band to the conduction band, to the conduction band, to the conduction band, then a covalent bond, ये देखिए लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए, covalent bond is broken and a deficiency of electron. अब देखिए मिसकंसेप्ट और कंसेप्ट में बात कर लें तो स्टूडेंट कैसे इसको मिसकंसेप्ट में लेते हैं, बोले इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और सीधे एक उठा के थ्योरी डाल दी कि भाई इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऐसा नहीं है भैया, वो इलेक्ट्रॉन ने कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक किया है, वो क्रिस्टल के अंदर ही है, पर अब वो बैलेंस बैंड में नहीं रहेगा, अब वो बैलेंस बैंड में नहीं रहेगा, इट इज स्टिल इनसाइड द क्रिस्टल बट इट इज नॉट इन द बैलेंस बैंड। वो बैलेंस बैंड में है ही नहीं, कहाँ चला गया है, कंडक्शन बैंड में, पर है तो मटेरियल के अंदर ही। तो जब हम लैंग्वेज यूज करते हैं इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्रिएटेड, तो ऐसे लिखना चाहिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन अब बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं है, चला गया, पर है क्रिस्टल के अंदर ही। इससे नेट चार्ज पर कोई भी असर, प्लीज नोट कर लें, इससे नेट चार्ज पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, deficiency of electron is created for the formation of covalent bond। देखिए फिर आगे मैं लिख रहा हूं, this deficiency acts like a positive charge। मैंने ये नहीं कहा है कि होल एक पॉजिटिव चार्ज है, अगर किसी किताब में लिखा है तो आप सिरे से उसे खारिज करिए कि होल एक पॉजिटिव चार्ज होता है। नो, होल एक सिंबल है, डेफिशिएंसी for the for the purpose of, for the purpose of making covalent bonds। तो बीच बीच में आप लोग जब इसे नोट कर लें तो कम से कम चैट भी करा करें। और फिजिक्स में आप चिंता मत करिए, फिजिक्स में आप चिंता मत करिए, आपका स्कोर अच्छा होगा, ये मेरा आज मेरे बच्चों से प्रॉमिस है, पर मुझे टाइम चाहिए। ग्रेजुअली ग्रेजुअली स्लोली जब हम आगे बढ़ते जाएंगे आपका कंसेप्ट इम्प्रूव होता जाएगा। मैं आज के वीडियो को यूट्यूब पर लिस्ट करूंगा और अनलिस्टेड करूंगा और आपको भेज दूंगा, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, but it will not be listed on YouTube, it will be only for your private use। Okay,
तो दिस डेफिशिएंसी एक्ट्स लाइक ए पॉजिटिव चार्ज। मैंने कभी नहीं कहा कि होल एक पॉजिटिव चार्ज है, अगर किसी किताब में कहा है तो वो भी क्या है, बहुत गलत बात है। होल बिहेव्स लाइक ए पॉजिटिव चार्ज बट होल इज नॉट ए पॉजिटिव चार्ज। मैंने अभी आपको फ्यू मिनट्स बिफोर मैंने आपको समझा दिया है, इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से चला गया पर है तो क्रिस्टल के अंदर ही, पर वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो बॉन्ड तो पूरा करना है, तो अब क्या होगा, आगे लिखते हैं। ड्यू टू दिस डेफिशिएंसी, ड्यू टू दिस deficiency, movements of electrons takes place in the valence band, in the valence band. It is like that. Let me explain you. ये हमारा वैलेंस बैंड है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ इस कॉल्ड होल। सो एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इन वैलेंस बैंड, इन वैलेंस बैंड both electrons and holes are found, whereas in conduction band only electrons are found. अब देखिए, electrons are found. Wait a minute, let me write it properly. Electrons are found. अब ये चला गया है इलेक्ट्रॉन, कहाँ चला गया, कंडक्शन बैंड में। तो अब ये क्या है, अपने नेबरिंग इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाने के लिए ये नेबर से इलेक्ट्रॉन बोरो करेगा, बोरो कर लिया, देखिए इसने बोरो कर लिया, तो यहाँ होल क्रिएट हो गया और यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये क्या करेगा, ये होल फिर एक और इलेक्ट्रॉन को बोरो करेगा, ये देखिए बोरो कर रहा है। बात को आप समझिए, लेट मी एक्सप्लेन यू। तो अब क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया और होल यहाँ चला गया। So this way, that is why I say that due to this deficiency, movement of electron takes place in the valence band and conductivity, क्योंकि कंडक्टिविटी तो डिसाइड करती है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू। तो आप इसे नोट कर लें, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इनसाइड द valence band and conductivity is a result of movement, the motion of electron. What causes conductivity, the motion of electrons. हमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चाहिए, मोशन चाहिए,
और जब इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्टिव मोशन हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा, तो हम कहेंगे कंडक्टिव, देयर इज अ कंडक्टिविटी. द सोर्स ऑफ कंडक्टिविटी इज द इलेक्ट्रॉन मूवमेंट. ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए. दैट यू मस्ट रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. These are the just basic fundamental concepts. You can say that. अब देखिए हम आगे भी करेंगे, आपने इसे नोट कर लिया. ओके. ओके स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? तो चलिए आगे बढ़ते हैं. इफ यू रियली वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क. I will ask Shine Academy regarding the whole year curriculum. अब देखिए, classification of solids. Classification of solids. सबसे पहला हम हेडिंग लेते हैं इसमें इंसुलेटर. पहला पॉइंट, इन इंसुलेटर्स valence electrons, the concept of physics है, valence electrons are bound very tightly, bounds very tightly to their parent atom. इसका मतलब बहुत क्लियर है कि इंसुलेटर में अगर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और हम उसे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमें बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा. हमें कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना. अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड. टाइटली बाउंड तो होने का मतलब है, इसमें आगे रखेंगे. सो लार्ज amount of energy is required to remove them, to remove them, to remove them from valence band to conduction band, to conduction band. So the forbidden energy gap is very large. Second point, in insulators, conduction band is empty.
valence band is completely filled. तीसरा point, resistivity range. 10 to the power 11 to 10 to the power 19 ohm. चौथा point, conductivity 10 to the power minus, this is ohm meter, ohm meter, 10 to the power minus 11 to 10 to the power minus 19 mho per meter. लिखिए आप and please tell me if you have written it. Orbital energy gap is very large and greater than 6 electron volt. ये भी आप लिख लीजिए. Example, wood, insulator, diamond, mica. These are the some examples. और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें इसे याद रखना है. Conduction band is empty. And बच्चों valence band is पूछा जाता है. It's completely filled. It's completely filled. Okay. So I am moving to the next point. Next slide. अगला पॉइंट आप लिखेंगे. Temperature coefficient of resistance is negative for insulators. Is negative for insulators. अब देखिए आपने पढ़ा होगा आर टी इक्वल टू आर जीरो वन प्लस अल्फा टी. व्हाट इज आर टी? resistance at T degree Celsius. R0 resistance at 0 degree Celsius. And alpha is called temperature coefficient of resistance. For metals, alpha is positive. For non-metals, alpha is negative.
for insulators. Alpha is negative. So please note it down. First of all of you should understand your NEET syllabus and go for analysis of the previous year papers. किस टॉपिक से कितने मार्क्स कवर होते हैं, एनालिसिस बनाइए. सेमीकंडक्टर you may get out of 45 2 or 3. एंड अगर आप प्रीवियस ईयर नीट के पेपर के थ्रू जाएं तो हमेशा मैनेजेबल क्वेश्चन पूछा जाता है. पेपर इजी है यहाँ पर इजी कब होगा जब आप उसे अच्छे से पढ़ेंगे. अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं. बीच में हम 8 या 9 मिनट का ब्रेक लेंगे, ये आपको मैं बता चुका हूँ. अब देखिए आगे हम बात करते हैं कंडक्टर्स. कंडक्टर्स पहला पॉइंट आप लिखेंगे, इन कंडक्टर्स वैलेंस बैंड and conduction band. Overlap each other. तो पहले हमें इसे समझना जरूरी है कि ओवरलैपिंग कैसे होती है. देखिए ये आपका कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है. ओके, दिस इज योर वैलेंस बैंड. ओके, तो अब देखिएगा, और ये है आपका कंडक्शन बैंड. दिस इज योर कंडक्शन बैंड. I think you are able to see it. There is a overlap. They overlap each other. So valence electron. Valence electron does not require any energy. Does not require any energy to move into conduction band. To move into conduction band. To move into conduction band. ये सबसे important point है. So have you noted down this? You can chat with me. Okay. और आप लोग टेस्ट दीजिए, देखिए टेस्ट बिगड़ने दीजिए, और जो हम टेस्ट से सीखेंगे विद इन आफ्टर 2 वीक्स आपका पेपर नहीं बिगड़ेगा, इतना तो मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ. आगे लिखिए. Okay, let's move to the next slide.
for conductors. Resistivity. Current लिखिए 10 to the power minus 2 to 10 to the power minus 8 ohm meter. कंडक्टिविटी का रेंज लिखिए, याद होना चाहिए, आगे चल के हम यूज करेंगे। कंडक्टिविटी का रेंज लिखना चाहिए 10 to the power 2 to 10 to the power 8 mhometer per meter. Alpha is positive, and you know that alpha is temperature coefficient of resistance. Temperature coefficient of resistance. So, on increasing the temperature of resistance, temperature of conductors, their resistance increases, their resistance increases. तो आप इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। Their resistance increases. Their resistance increases. Have you noted down? ओवरलैपिंग होती है, मेन तो ये है कि देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, ओवरलैप कर जाते हैं। हैव यू नोटेड डाउन? ओके, ओके। आप लोगों के लिए 10 मिनट का गैप है।